हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? गुड. ओके. आई होप माय प्रीवियस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू. सो टुडे we will discuss next part of the chapter. Okay, so welcome to my next lecture, grade 5, topic reproduction in the plant. In the previous lecture we discussed about the dispersal of the seeds. Dispersal seeds के बारे में डिस्कस किया था. So today, why do seeds dispersal? If the seeds fall under the mother plant, they would not have enough space, sunlight, food, water to grow. Okay? If अगर सभी seeds mother plant के पास ही गिर जाएंगे अगर, तो क्या होगा? उनको इनफ ना तो स्पेस मिलेगा, ना सनलाइट, ना फूड और ना ही वाटर, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. They would be overcrowded. And dispersal helps the seed to reach a suitable place where they can grow into the new plant. जो dispersal process है वो क्या है? एक उन्हें suitable place पर पहुंचने में help करती है जहाँ पे उन्हें sufficient amount में सब कुछ मिल सके और वो एक नए plant में germinate हो सके. Some seeds have special feature which help them to disperse and reach new ground. कुछ सीड्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उनको डिस्पर्सल होने में हेल्प करते हैं. ओके, सीड्स नीड टू डिस्पर्स इन ऑर्डर टू रीच अ सुटेबल प्लेस फॉर द germination. Okay, understand? So after that we will discuss the agents of the dispersal, because seeds want agents for the dispersal or scattering of the seeds. So first is the wind. Seeds like cotton and the maple have wings or the hair. You can see the side picture or the image. They are very light. बहुत लाइट होते हैं वो वेट में. So they are easily blown away in the winds. अब लाइट होंगे तभी तो वो easily blown away हो पाएंगे ना एयर की हेल्प से, और फिर वो दूर दूर प्लेस पर पहुंच जाते हैं. सेकेंड, वाटर. Lotus fruit have spongy parts which float on the water. And coconut have a fibrous wall. Coconut के पास एक fibrous wall होती है जो कि उसकी पानी में float करने में help करती है. And they can travel for hundreds of miles in the sea. Okay? And reach the source. किनारे पर, दूसरी कंट्री के किनारे पर भी वो पहुंच जाते हैं ट्रैवल करके. Where they may germinate and grow. और फिर जहाँ पर वो जर्मिनेट कर सके और फिर वहाँ पर उनकी ग्रोथ हो जाती है. सो विंड एंड वाटर ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, एजेंट्स हैं डिस्पर्सल में. दे क्या है? एबायोटिक एजेंट, मतलब नॉन लिविंग एजेंट. ओके, नाउ एनिमल. Animals and human being eat different fruit and throw their seeds here and there. Animals और human being क्या करते हैं? fruits खाते हैं और उनके जो seeds होते हैं वो यहाँ और वहाँ फेंक देते हैं ना. और birds eat certain fruits and their seeds are passed out in their dropping. birds भी ऐसे ही करते हैं. And the neem seeds are dispersed by bird in this manner. जो नीम के सीड्स होते हैं वो भी बर्ड्स के द्वारा इसी मैनर्स में डिस्पर्सल करवाए जाते हैं. सम सीड्स हैव द हुक्स, स्पाइन्स, थोर्न और स्टिफ हेयर. यू कैन सी इन द पिक्चर. दे आर कोट इन द हेयर ऑफ द एनिमल. अब हुक्स और स्पाइन्स होंगे तो क्या होगा? एनिमल्स के हेयर में वो चिपक जाएंगे, बर्ड्स की विंग में चिपक जाएंगे या फिर ह्यूमन बीइंग के कपड़ों में चिपक जाएंगे, जिससे फिर वो अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं. फोर्थ क्या है? एक्सप्लोजन. फ्रूट्स ऑफ द पी, लेडी फिंगर, बालसम एंड द पेंसी ब्रस्ट ओपन व्हेन द ड्राई. जब वो सूख जाते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं और बहुत ही ग्रेटर फोर्स से होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत दूर दूर पहुंच जाते हैं और फिर जर्मिनेट कर लेते हैं. नाउ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्पोर्स.
Some plants like algae, fern, fungi, mosses do not have flower. अब इनमें flowers तो होते ही नहीं और इन plants में seeds भी नहीं होते. So they reproduce or they produce spores. Spores are the minute structure. बहुत small structure होती हैं जो कि grow हो जाती हैं नई plants में. Okay, and the new plant from different part of the plant. Just see how new plant can also grow from the body part of the plant. Body parts, that means stem, roots, leaves. Okay, and some plants like rose, sugarcane and hibiscus that grow from the cutting of the stem. If you cut the stem of these plant na, so that stem will grow into the new plant. Farmer plant the cutting of sugarcane to grow the new sugarcane plant. अब जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर केन के स्टेम को कट करते हैं और फिर ग्रो कर देते हैं और फिर वो नया शुगर केन प्लांट बन जाता है. एंड द बर्ड्स इन द स्टेम ग्रो इन द न्यू प्लांट. और फिर उस स्टेम में बर्ड्स आती हैं और फिर नया प्लांट ग्रो हो जाता है. नेक्स्ट, पोटैटो, अनियन, जिंजर आर द अंडरग्राउंड स्टेम. पोटैटो हैज़ आई ऑन इट. आईज होती हैं पोटैटो पर. अगर आप उसको कट करोगे उस आईज को तो उस आई में कैपेबिलिटी होगी दैट विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. एंड द जिंजर हैव द बर्ड्स दैट विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. नाउ स्वीट पोटैटो, डालिया एंड एस्पेरेगस आर द रूट्स ऑफ द प्लांट. ये रूट्स होती है ना प्लांट की. इफ़ द रूट्स ऑफ सच प्लांट आर प्लांटेड, इन्हीं रूट्स को अगर हम प्लांट करेंगे, ग्रो करेंगे, तो यही रूट्स हमें क्या है, एक नया प्लांट दे देगी. एंड सम प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रास एंड द मिंट दैट विल ग्रो रनर्स. ओके, एंड दीज रनर्स टेक रूट्स where they touch the ground and start into the new plant. Last, bryophyllum. Bryophyllum is the plant which can produce new plant from the leaves. Bryophyllum एक ऐसा plant है जो कि एक leaves से अपना नया plant grow कर सकता है. इसकी leaves पर buds उग जाती हैं जो कि क्या है, एक नया plant को grow कर देती हैं. Many plants do not grow from the seeds. They grow from the stem, roots and the leaves. So rest part we will discuss in the next lecture. Till then, stay at home, stay safe. Thank you.